See that one here. So couple means what? Two equal and unlike parallel forces will form a couple. Means suppose I will take one bar here like this. Suppose one force is acting at this point. Let that force magnitude is P. Then another force is acting at this point. Let that force magnitude is P suppose. So क्या हो गया अभी ना दोनों force parallel to each other. One force is acting in upward direction, another force is acting in downward direction. Means that is known as your unlike parallel force. Parallel है, unlike है. Unlike क्यों है? ना एक upward जा रहा है, एक downward आ रहा है. And equal in magnitude. दोनों का magnitude क्या है ना? उसका magnitude P है, उसका भी magnitude क्या है? P है. So that means we can say that equal in magnitude and unlike parallel. Clear? So that means this will form a couple. वहाँ पे जो formation होगा that is known as couple. So couple means what? ना two equal and unlike parallel forces. दो force का magnitude equal होगा but unlike होगा means direction different होगा. So that means they will form a couple. Clear? And one best example is just to lock or unlock a key. जब हम की को लॉक करेंगे और अनलॉक करेंगे मींस वी आर अप्लाइंग वन फोर्स इन दिस टिप इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. एक की को डाउनवर्ड डायरेक्शन और दूसरी साइड में क्या करेंगे ना अपवर्ड डायरेक्शन. मींस वन इज एक्टिंग डाउनवर्ड अनदर वन इज एक्टिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन. सो दैट मींस जस्ट टू लॉक और अनलॉक ए की दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कपल. क्लियर? सो नॉर्मली 2 मार्क्स क्वेश्चंस आर आस्क्ड. व्हाट डू यू मीन बाय कपल? सो कपल मींस ओनली यू राइट डाउन दैट टू वर्ड्स दैट इज टू इक्वल and unlike parallel forces will form a couple. इतना ही लिखने से 2 मार्क मिल जाएगा. क्लियर? तो हो गया couple. So now we'll see what is the moment of couple. So जहाँ पे भी ऐसे couple होगा ना that has the tendency to rotate the body. Body को rotate करेगा. Means if one force is acting upward direction, another force is acting downward direction. Means this will form a couple and it has the tendency to rotate the body. मतलब ऐसा है suppose one force is acting in downward direction, another force is acting upward direction, means it has the tendency to rotate the body को ऐसे rotate करेगा. So that means this couple is of 2 types. उसको हम 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं. One is clockwise couple, then second one is anti-clockwise couple. Means वो अगर clockwise में घुमाएगा then that is known as clockwise couple. And if that will rotate the body in anti-clockwise direction, that is known as anti-clockwise couple. Just like your lock or unlock a key, अगर हम lock करेंगे clockwise में, unlock करेंगे कौन सा direction में? Anti-clockwise में. So that means for this, what is the moment direction? वहाँ पे moment का direction क्या होगा? देखो वो force upward है, वो force downward है. So this is your tail, this is your head vector का जो notation है. So that means if I will join like this, means that will rotate like this. वो ऐसे rotate होगा. सपोज उसका डायरेक्शन एक होगा डाउनवर्ड और उसका डायरेक्शन अपवर्ड होगा. वहां पे कैसे होगा मूवमेंट? दैट विल मूव लाइक दिस. वो ऐसे मूवमेंट होगा. सो दैट इज एंटी क्लॉकवाइज. सो दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन. क्लियर? सो दैट मींस हियर ए मूवमेंट इज प्रोड्यूस्ड. टर्निंग इफेक्ट आता है ड्यू टू दिस कपल. वो ऑब्जेक्ट क्या होता है ना टर्न होता है. टर्न होता है मींस व्हाट ना दैट इज द टर्निंग इफेक्ट. सो टर्निंग इफेक्ट आएगा मतलब वी कैन टेल दैट वन एज मूवमेंट. सो नाउ वी कैन कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ कपल. वो जो कपल का मोमेंट है वो कितना होगा? मोमेंट ऑफ कपल. सो दैट मींस इफ दिस टू फोर्सेस विल फॉर्म द कपल. सो मोमेंट ऑफ कपल का फार्मूला क्या है ना एनी वन ऑफ द फोर्स. वहां पे 2 फोर्स है, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है. सो एनी वन ऑफ द 2 फोर्सेस मींस लेट वन फोर्स इज P. सो दैट इज P सेम फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द 2 फोर्सेस. सो 2 फोर्स के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज A to B. This is our distance. मैं बोलूँगा suppose this distance is L. वो 2 के बीच में distance क्या है? फोर्स के बीच में distance L है. So that means P into L that is known as moment of couple. Or we can write down P into L means what? That is nothing but A to B. So that is P into A to B. That is moment of couple. Then A to B जो length है that is also known as arm of couple. उसको हम क्या बोलते हैं? Arm of couple भी बोल सकते हैं. Arm of couple. Clear? So this is the moment of couple and what is its unit? उसका यूनिट क्या होगा ना वही से force into perpendicular distance मतलब न्यूटन into मीटर, न्यूटन into mm, न्यूटन into cm. जो होगा डिस्टेंस उसी हिसाब से आएगा सब यूनिट्स. क्लियर? So now we'll see
the characteristics of this couple. So if this is your couple, then what are the different characteristics? उसका सब characteristics क्या है वो सब one by one दिखेंगे। एक क्वेश्चन तो 100% आएगा बट बहुत सारा कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। क्लियर? कपल के बारे में जितना भी थोड़ा concepts है, so that very small concept will also clear if we will see that 4 characteristics. वो सब characteristics एक by एक लिखेंगे तो सब concept clear हो जाएगा। So now we will see characteristics of couple just to clear all your doubts about couple. Couple में जो भी कुछ है छोटा-छोटा concept वो सब clear हो जाएगा। So first characteristics is couple means what? We know couple means suppose two unlike parallel forces. Couple हमको पता है two equal and unlike parallel. मतलब एक force upward होगा magnitude p है और एक force downward होगा magnitude p है। दोनों का magnitude same हो गया। डायरेक्शन अपोजिट है मींस अनलाइक, मैग्नीट्यूड सेम है मतलब इक्वल। सो टू इक्वल एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस विल फॉर्म ए कपल। सो दिस विल फॉर्म ए कपल। क्लियर? सो नाउ वी विल सी द कैरेक्टरिस्टिक्स वन बाय वन। सो द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज द अलजेब्रिक सम ऑफ द फोर्सेस कॉन्स्टिट्यूटिंग द कपल इज 0। मतलब कपल को फॉर्मेशन करने के लिए कितना फोर्स चाहिए ना? 2 फोर्स चाहिए। वन फोर्स इज P, अनदर फोर्स इज P। तो क्या बोल रहा है ना, उसका अगर हम वो फोर्स का अलजेब्रिक समेशन निकालेंगे तो नेट फोर्स क्या आएगा ना? 0 ही आएगा। देखो वो सब वेरी इजी थी ना। वन फोर्स अपवर्ड है P, अनदर फोर्स डाउनवर्ड है। मैं बोलूंगा सपोज व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स और नेट फोर्स ऑफ दिस कपल। वो कपल में जितना फोर्स है उसका नेट फोर्स कितना है ना? एक अपवर्ड है मतलब प्लस होगा और एक डाउनवर्ड है मतलब माइनस होगा। सो P माइनस P आंसर क्या होगा? 0 होगा। So that means the algebraic sum of the forces, अगर फोर्स को हम algebraically एडिशन करेंगे तो नेट फोर्स क्या आएगा ना? 0 ही आएगा। That is the first point. Then second point is the algebraic sum of moments of the forces constituting the couple about any point is same and equal to the moment of the couple itself. So second point क्या है? देखो second point में क्या लिखा है? The algebraic sum of moment of forces, मतलब वो जो कपल फॉर्मेशन हुआ है इधर देखो, सपोज दिस इज A पॉइंट, दिस इज B पॉइंट, बोथ आर सेम इन मैग्नीट्यूड मींस दिस विल फॉर्म ए कपल। वो सेकंड पॉइंट का मीनिंग क्या है ना? इंडिविजुअल फोर्स का मोमेंट मतलब P का मोमेंट और वो जो सेकंड फोर्स का मोमेंट जो भी एक पॉइंट में निकालेंगे, सपोज A पॉइंट में और B पॉइंट में, और उसको ऐड करेंगे तो अलजेब्रिक सम ऑफ द मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ कपल इटसेल्फ। वो कपल का मोमेंट के साथ इक्वल होगा। So now we have to check. So suppose I will take A point. A point choose करेंगे तो P force का मोमेंट A point में क्या होगा ना? मोमेंट प्रोड्यूस्ड बाय दिस P force about A point that is equal to what ना? 0। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, so A point में पास हो रहा है तो 0 होगा। तो मोमेंट प्रोड्यूस्ड बाय दिस P force about A point, what is the answer ना? that is P into this distance। suppose this distance is L, तो मतलब इधर मोमेंट क्या होगा? PL होगा। that is moment produced by second, this one। वो फोर्स का मोमेंट अबाउट A point, the answer is P into L। तो दो फोर्स का मोमेंट A point में आएगा, नेट मोमेंट क्या होगा ना? this plus this means नेट मोमेंट आएगा क्या ना? P into L। that is the algebraic sum of moment of these two forces about A point, that is the answer। बट वो किसके साथ इक्वल होगा ना? that is equal with the moment of couple itself। मतलब वो कपल का मोमेंट जितना है वो इसके साथ इक्वल होगा। तो कपल का मोमेंट मैंने अभी बोला था फोर्स एनी वन ऑफ द फोर्स इनटू आर्म ऑफ कपल। सो एनी वन ऑफ द फोर्स मींस दैट इज आइदर ऑफ दिस टू फोर्सेस, दैट इज P इनटू आर्म ऑफ कपल मींस व्हाट ना? डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, दैट इज व्हाट? L। सो दैट इज P इक्वल टू P इनटू L। सो दैट मींस दिस अलजेब्रिक सम ऑफ फोर्सेस, मोमेंट ऑफ फोर्सेस इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ कपल इटसेल्फ। कपल का जो मोमेंट बाकी इंडिविजुअल फोर्स का एक पॉइंट में मोमेंट दोनों का वैल्यू क्या होगा? सेम होगा। सो दैट इज आवर सेकंड पॉइंट। देन कम टू द थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट now come to third point। A couple cannot be balanced by a single force, but it can only be balanced by a couple in opposite sets। very simple। Suppose this is your couple, let this is your P force, this is your another P force, so that will form a couple। same thing equal in magnitude, opposite in direction। वो क्या बोल रहा है ना? एक couple को बैलेंस करने के लिए, so the tendency of this couple just to rotate the body in clockwise direction, ऐसे घुमाएगा बॉडी को।
तो वो क्या बोल रहे हैं कि कपुल कैन नॉट बी बैलेंस्ड बाय सिंगल फोर्स। मींस सपोज वहां पे एक फोर्स डाउनवर्ड और अपवर्ड जहां पे भी रखेंगे वो बैलेंस नहीं होगा। वो कैसे बैलेंस होगा? सपोज आई विल पुट अनदर फोर्स हियर of p magnitude, then put another force here of p magnitude, then what happens? This will form one couple and this will form another couple। एक वो couple में क्या होगा ना, force into distance, so that will rotate in clockwise direction। then वो जो couple formation होगा, this p and this p, that will also form another couple, so that will rotate in anti-clockwise direction। so एक clockwise में और एक anti-clockwise में, means that is balanced। means a single couple cannot be balanced by a single force। अगर वहां से एक हटा देंगे ऐसे, तो एक फोर्स में वो बैलेंस कभी नहीं होगा। वो कैसे बैलेंस होगा ना, बाय ए कपुल इटसेल्फ। सो कपुल इज बैलेंस्ड बाय ए कपुल, बट इन ऑपोजिट सेंस। ऑपोजिट सेंस मींस जस्ट लाइक दिस फिगर। वो केस में क्या था, ओपी में क्या था ना, दैट इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन, बट दिस फोर्स में वो क्या था, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो एक क्लॉकवाइज कपुल होगा और एक एंटी क्लॉकवाइज कपुल होगा, देन वो बैलेंस होगा, दैट विल बैलेंस द another couple। clear? then we'll see the last point, that is any number of coplanar couples can be reduced to a single couple whose magnitude will be equal to the algebraic sum of the moments of all the couples। so any number of coplanar couples, suppose I will take one couple here, suppose this is 2 Newton, this one is 2 Newton, okay, same in magnitude, opposite in direction, that will form a couple। let this is A point and B point, we are taking one example, so this is the example just to explain that one। suppose this distance is 3 meter, so that means this 2 Newton, that will form a couple, and that is a coplanar couple, all the forces are in same plane। in the first class you all learn about that system of forces। suppose another couple is here by the force of 3 Newton, suppose this is 3 Newton, let this is your 3 Newton, so means this 3 Newton will form another couple। वो और एक couple होगा, equal in magnitude, opposite in direction। this is equal in magnitude, opposite in direction, means in this figure, वो जो figure में मैंने दिखाया है, क्या दिखाया है ना, 2 couples are formed, एक 2 Newton के द्वारा और एक 3 Newton के द्वारा। clear? so now the characteristics is what, any number of coplanar couples can be reduced to a single couple। मतलब वहां पे दो कपुल फॉर्मेशन है, एक 2 न्यूटन के द्वारा और एक 3 न्यूटन के द्वारा, बट दैट कैन बी रिड्यूस्ड टू अ सिंगल कपुल। उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं कितने में ना, एक सिंगल कपुल में, whose magnitude is be equal to the algebraic sum of moment of all couples। तो इधर अगर हम कैलकुलेट करेंगे algebraic sum of moment of all these two couples, मतलब वो 2 न्यूटन में 2 न्यूटन का मोमेंट ऑफ कपुल, दैट इज मोमेंट ऑफ कपुल by 2 Newton, क्या होगा ना, 2 Newton का moment of couple, that is any one force into distance means what, 3 meter, that is 6 Newton meter, that is the moment of couple। what is its direction, that is clockwise, तो उसका direction clockwise हो गया। बाकी moment of couple by 2 Newton के बाद और एक couple है 3 Newton, तो 3 Newton का moment of couple क्या होगा ना, 3 into perpendicular distance क्या है, 3 है, arm of couple, that is equal to now 9 Newton meter। what is its direction na, anti-clockwise, so this is anti-clockwise। so now what is the resultant moment of these two couples? resultant क्या होगा ना, एक 6 है और एक 9 है, एक clockwise है और एक anti-clockwise है, so net क्या होगा ना, net moment of couple, that is 9 minus 6, that is 3 Newton meter anti-clockwise। क्यों 9 माइनस 3 किया ना, एक क्लॉकवाइज में जाएगा और एक एंटी क्लॉकवाइज में जाएगा, नेट क्या होगा ना, एक से एक माइनस होगा। अगर दोनों सेम डायरेक्शन होगा तो दोनों का क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो कैपिटल से स्मॉल मतलब 9 माइनस 6, दैट इज 3 न्यूटन। वो बड़ा वाला का साइन क्या था ना, एंटी क्लॉकवाइज, सो इसीलिए 3 न्यूटन मीटर का डायरेक्शन क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। सो नाउ इफ आई विल रिड्यूस दैट वन टू ए सिंगल कपल, उसको अगर हम रिड्यूस करेंगे, वो 2 न्यूटन है, वो 3 न्यूटन है, नेट फोर्स इधर क्या आएगा, 2 है और इधर 3 न्यूटन है, तो मतलब वहां पे जो नेट फोर्स आएगा along this direction, the net force is 1 न्यूटन। वो सब सिंपल थिंग है, एक फोर्स 2 न्यूटन अपवर्ड है, 3 न्यूटन डाउनवर्ड है, नेट क्या आएगा ना, 1 न्यूटन डाउनवर्ड। इधर भी वही सेम सी, 3 न्यूटन अपवर्ड, 2 न्यूटन डाउनवर्ड, तो नेट फोर्स क्या होगा ना, 1 न्यूटन, दैट इज आल्सो इन अपवर्ड डायरेक्शन।
मतलब उसका रिजल्टेंट आ गया 1 न्यूटन, उसका रिजल्टेंट आ गया 1 न्यूटन। नाउ चेक दिस इज आल्सो फॉर्म ए कपल रिजल्टेंट के द्वारा 1 न्यूटन मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड, मींस दैट इज अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। सो नाउ वी हैव टू कंपेयर दैट मोमेंट, वो जो 1 न्यूटन हो गया कपुल 1 न्यूटन, उसका जो मोमेंट आएगा इसके साथ इक्वल होता है कि नहीं होता है, दैट वी हैव टू चेक। सो दैट मींस दिस मोमेंट ऑफ कपुल, दैट इज मोमेंट ऑफ कपुल बाय 1 न्यूटन क्या होगा ना, दैट इज 1 इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है 3 है, सो दैट इज इक्वल टू 3 न्यूटन मीटर, दैट इज द मोमेंट ऑफ कपुल। बट इट्स डायरेक्शन इज व्हाट ना, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मींस वी हैव टू राइट डाउन हियर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लियर? तो देखो इधर भी आंसर आया 3 न्यूटन मीटर एंटी क्लॉकवाइज, इधर भी नेट कितना आया था 3 न्यूटन मीटर एंटी क्लॉकवाइज। So accordingly we have to compare that one. So very simple thing. So that means any number of coplanar couples, एक सिंगल प्लेन में जितना भी कोप्लानर कपल होगा, you can reduce that one to a single couple. एक सिंगल कपल में हम रिड्यूस कर सकते हैं। Clear? So these are the characteristics of the couple.